Good morning, dear students. First, let's do Brahmanath for concentration. Sabdhan Siddha. Om. Om. Santi, Santi, Santi. Swastha. So dear students, again welcome back to your VSM class. In our previous class, we had already covered the various objectives of business. So mainly, the objectives of the business are of three types. That may be economic objectives, that may be social objectives, that may be last one, human or individual objective. So the human objectives are ultimately related with the employees who are working in the business, and the social objective refers to the objectives or the responsibility of the business towards the society. जो सोसाइटी में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए बिजनेस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो व्हाट आर द पॉइंट्स कमिंग अंडर योर सोशल ऑब्जेक्टिव? द पॉइंट्स लाइक इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस to find out the need and preference of the customers and provide goods as per the requirement of the customers. This is the first point, and also we discussed the second point, that is your provide quality goods at a reasonable price. Then the third point is creating more and more employment opportunity in the society. Then the fourth point, reducing the environmental pollution. Then the last point, that making payment of taxes to the government in right time, so that government can do various social welfare activities in the society. So all these things were related to the society. Then the next one is human or individual objective. In human objective, as it is related to the employees, as we know, employees are the vital assets or main assets of any organization. So that's why human objectives like providing a good salary to the workers, competitive salary or wages to the workers, provide a better working conditions for the workers like air facility, ventilation facility, drinking facility, all these facilities should be available for the workers. Providing other facilities like transportation facility, medical facility, communication facility, these facilities should be provided to the workers so that they feel motivated to do the work, and also provide training programs to the workers. So these are the various human related points. So dear students, in this particular class, we are going to discuss the various types of business activities. So the business activities, so the business एक्टिविटीज़, ऑलरेडी हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा था. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? बिजनेस एक्टिविटी. सो दिस बिजनेस एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, दैट मे बी इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज कॉमर्स. So all the business activities are divided into two types, that may be industry or that may be commerce. Let us discuss it. What is industry? So ये वाला जो पॉइंट है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री के बारे में. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर यू, फॉर योर टेस्ट एग्जाम, फॉर योर यूनिट टेस्ट एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, इवन फॉर एनुअल एग्जाम. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. It comes as a long question as well as it also come in short question. So अभी हम लोग इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे इंडस्ट्री क्या होता है, कितने तरह के इंडस्ट्री हैं, उसका टाइप्स क्या क्या होगा, ये सारी चीज़. ठीक है. So the first one is your industry. Then industry again divided into three types. The first one is your primary industry. Then the second one is secondary industry. Then the third one is your tertiary.
or service industry. So there are three types of industries are there: primary industry, secondary industry, tertiary industry. पहले डायग्राम समझेंगे फिर एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है. Then again the primary industry are of two types. First one is your genetic industry. Then the second one is your extractive industry. ठीक है. Primary industry and the primary industry are of two types. Either it may be genetic industry or it may be extractive industry. Then the secondary industry is again divided into two types. That is, first one is your manufacturing industry. Then the second one is your construction industry. ठीक है. Manufacturing industry and the construction industry. Again, the manufacturing industry divided into four types. The manufacturing industry again divided into four types. The first one is your analytical industry. Then the second one is your synthetic industry, processing industry. Then the third one, synthetic. And the last one is your assembling industry. So these are the various types of industries. In primary industry it is of two types. In secondary industry it is also of two types, manufacturing and construction. Then again the manufacturing industry divided into four types. That is analytical, processing, synthetic, and the last one is assembling industry. Let us understand it. What is an industry? Industry मतलब क्या होता है? आप लोग industry का मतलब क्या समझते हैं? So generally industry refers to a place, or industry refers to all those activities which are carried out in order to convert the raw material into finished product. जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो काम हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री रेफर्स टू द प्लेस वेयर द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स. Not only this is called industry, but also another definition of industry is also there in your book. That definition is, it refers to all those industries which are producing similar product, which are producing similar type of product is called industry. For example, iron industry. अभी तो मतलब हम लोगों ने नाम सुना होगा आयरन इंडस्ट्री. सो आयरन इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल दोज प्रोड्यूसर्स हु आर डील इन आयरन प्रोडक्ट. कार इंडस्ट्री, तो कार इंडस्ट्री मतलब जितने भी इंडिया में कंपनीज है जो कि कार के लिए या फिर कार में डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कार इंडस्ट्री. ठीक है. उसी तरह प्लास्टिक इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, दैट रेफर्स टू द इंडस्ट्रीज और द एक्टिविटीज प्रोड्यूसर्स हु आर डील इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. सो इंडस्ट्री का दो तरह का डेफिनेशन है. पहला वाला है इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड आउट टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. तो इंडस्ट्री में क्या होता है बेसिकली? जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. So industry refers to a place where the raw materials are converted into finished goods. Industry also create farm utility. So industry, यहाँ पे जो पॉइंट है, इंडस्ट्री ऑल्सो क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म यूटिलिटी? फॉर्म मतलब
प्रोडक्ट का जो साइज होता है, प्रोडक्ट का जो शेप होता है, उसमें चेंजेस होता है कहाँ पे? इंडस्ट्री में. सो इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री इज बेसिकली रिलेटेड टू द फॉर्म यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. दैट मीन्स द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. जैसे कि मान लो हम लोग पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो पेपर कहाँ से आता है? बम्बू से आता है. तो जो बम्बू होता है उसको प्रोसेसिंग करते हैं. प्रोसेसिंग करने के बाद उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो होता है पेपर. ठीक है. उसी तरह ही जो शुगर आता है, शुगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो शुगर कहाँ से आता है? शुगर कैन से आता है. तो शुगर कैन को हम लोगों ने लाए, उसको प्रोसेस किया, उसके बाद शुगर जो निकला उसको हम लोगों ने यूज़ किया. अभी जैसे कि ये जो ड्रेस है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ड्रेस मटेरियल, तो ड्रेस कहाँ से आता है? कॉटन से आता है. तो पहले कॉटन आएगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे, फिर जाके ड्रेस आएगा. सो इंडस्ट्री रेफर्स टू द प्लेस. रॉ मटेरियल क्या हो गया? शुगर कैन रॉ मटेरियल हो गया, जो कॉटन रॉ मटेरियल हो गया. फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हो गया? शुगर कैन से शुगर जो आया, शुगर हो गया फिनिश्ड गुड्स. उसी तरह ही कॉटन से साट जो आया, वो साट हो गया फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. सो इंडस्ट्री. Then the industry can be of three types: primary, secondary, tertiary. So what is primary industry? So primary industry refers to those industry who are engaged in reproduction, multiplication and extraction of the natural resources. Reproduction and multiplication of certain species of animals and plants. So जो primary industry होता है, यहाँ पे basically क्या होता है? Extraction. Primary industry basically related to extraction, production or processing of natural resources. Primary industry is basically related to extraction of natural resources, production of natural resources, reproduction and multiplication of species or animals. That refers to the primary industry. Again, the primary industry are of two types. That may be genetic industry or that may be your extractive industry. As the name suggests, genetic industry. तो जेनेटिक का जो यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जेनेटिक रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री व्हिच आर डीलिंग इन production, reproduction and multiplication of certain species of animals and plants and earning profit by selling of that. तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? बेसिकली रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. रिप्रोडक्शन भी होता है और उसके अलावा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन भी होता है. किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है? नेचुरल रिसोर्सेस. रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेसीज एंड प्लांट. प्लांट मतलब जो पेड़ होता है, पेड़ मतलब छोटे छोटे प्लांटेशन का जो होता है, प्लांटेशन या फिर स्पेसीज, कुछ स्पेसीज को लेके वहाँ पे भी हो सकता है रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि मतलब एक प्लांट से और बहुत सारे प्लांट उसमें रिप्रोडक्शन हुए या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गए. जैसे मतलब फिश हैचरिंग होता है, तो फिश हैचरिंग मतलब एक जगह पे हम पॉन्ड में फिश को छोड़ दिए, वहाँ पे उन लोगों का ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन होता रहता है. तो वो वाला क्या हो गया? आइदर रिप्रोडक्शन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा. बट उसका जो मेन मोटिव होगा, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट? इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑफ दैट प्लांट और स्पेसीज. वो जो स्पेसीज होगा या फिर प्लांट होगा उसको सेल करना है और उससे प्रॉफिट निकालना है. ठीक है. सो दैट इज रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑफ दैट. सो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? जैसे आप लोगों ने नर्सरीज नाम सुना होगा. नर्सरीज में प्लांट्स अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए. लोग वहाँ पे जाते हैं और प्लांट को खरीद के लाते हैं. उसी तरह फिश हैचरीज मतलब जैसे कि जो मतलब मछली का जो होता है एग्रीकल्चरल रिलेटेड. तो और क्या होता है? कैटल ब्रीडिंग, जो मतलब कैटल ब्रीडिंग जो होता है वो भी आएगा हम आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में. देन द नेक्स्ट वन इज योर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. as the name suggests, genetic refers to reproduction and multiplication. Extractive refers to extraction of the natural resources.
extraction of the natural resources. So it refers to the industry which are dealing or which are creating, raising some form of wealth by using the natural resources. So what are the natural resources? The natural resources like water, air, earth, beneath of the surface. So ये जो सारे चीज़ें हैं इनको यूज़ करके कुछ वेल्थ इंक्रीज करना या फिर कुछ प्रॉफिट पाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा. सो दिस इंडस्ट्री इज जनरली रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी which are dealing in producing some form of wealth by using the various natural resources. Natural resources में क्या क्या आएगा? एयर, वाटर, अर्थ, बेनेथ ऑफ द सरफेस, ये सब आएगा आपके नेचुरल रिसोर्सेज में. एयर यूज़ करके कुछ चीज़ें करना, वाटर यूज़ करके कुछ चीज़ें करना, फॉरेस्ट यूज़ करके कुछ उसमें से कुछ चीज़ करना. तो जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको उसके वजह से अगर कुछ एक्टिविटीज़ हो रहा है तो वो आएगा इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में. सो द फर्स्ट वन इज दिस इंडस्ट्री अगेन ऑफ टू टाइप्स. आप अगर बुक में से पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा दैट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री अगेन ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज योर इन फर्स्ट कैटेगरी the goods were already produced and the producer जो होता है वो सिर्फ क्या करेगा? तो गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे जो वर्कर होगा वो सिर्फ वर्कर का काम इतना होगा, वर्कर जस्ट कलेक्टिंग दोज गुड्स. तो वो होगा एक वाला इंडस्ट्री. दूसरे वाला इंडस्ट्री जो होगा वहाँ पे क्या होगा? गुड्स जो प्रोड्यूस होगा इट रिक्वायर्ड सम ह्यूमन स्किल. No doubt it requires some natural resources, but only natural resources is not enough. With the help of natural resources, it also required some human skill. That comes under your second category. So the first category where we discuss goods are available, already available, and the workers just collecting those goods. Example क्या हो सकता है? जैसे मान लो फिशिंग. तो आप लोगों को चिलिका के बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे. चिलिका जो मतलब है लेक, वहाँ पे क्या है? ऑलरेडी फिश अवेलेबल है या मतलब कोई जाके छोड़ के आया है? फिश हैचरीज हुआ है क्या चिलिका में? नहीं. चिलिका में क्या होगा? एक्सट्रैक्टिव का जो पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा फिशिंग. फिशिंग मतलब ऑलरेडी वहाँ पे फिश अवेलेबल है, हम लोगों को सिर्फ जाके वहाँ से लेके आना है. ठीक है. तो फिशिंग या फिर हंटिंग, जो शिकार करने के लिए जाते हैं जंगल में, तो जो हंटिंग होता है, हंटिंग ऑलरेडी एनिमल्स आर अवेलेबल इन जंगल. सो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा? हम लोगों को हंटिंग करना है. तो हंटिंग में ही आएगा तुम्हारा एक्सट्रैक्टिव में. और क्या हो सकता है? फिशिंग, हंटिंग, माइनिंग, जितने भी माइंस है, कोल माइन, आयरन ओर, पेट्रोलियम, तो जितने भी सारे माइंस है वो सभी माइंस भी कहाँ पे आएंगे? एक्सट्रैक्टिव के पहले वाला कैटेगरी में आएंगे. सेकेंड वाला कैटेगरी में क्या होता है? गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस कैसे होगा? इट रिक्वायर द नेचुरल रिसोर्सेज बट ऑल्सो रिक्वायर सम ह्यूमन स्किल. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो फार्मर्स, वहाँ पे क्या होता है? नॉट ओनली ह्यूमन स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. ह्यूमन स्किल चाहिए, उसके अलावा भी क्या चाहिए? इट रिक्वायर सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सन हीट चाहिए. उसी से ही जाके एग्रीकल्चर अच्छा होगा. ठीक है. एग्रीकल्चर हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, जो हम लोग मतलब पेड़ पौधे जो लगाते हैं, फॉरेस्ट्री जो करते हैं, वहाँ पे भी इट रिक्वायर सम नेचुरल रिसोर्सेज. सो दिस टू वर कमिंग अंडर योर जेनेटिक as well as extractive industry. In genetic, reproduction and multiplication of certain species of animals and plants, and in extractive, we have to increasing some form, raising some form of wealth by using the natural resources like water, air, earth, etc. Then we discuss about the secondary industry. The product which were produced in the primary industry are sent to the secondary industry. So secondary industry, it is the responsibility of the secondary industry. They are using the product of primary industry. प्राइमरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है उसको लाके हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. सपोज मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा एक्सट्रैक्टिव में माइनिंग. ठीक है. तो माइनिंग किस चीज़ का होता है? सपोज मान लो पेट्रोलियम जो होता है, आयरन और ऑयल वेल्स जो होता है, पेट्रोलियम ऑयल वेल्स, उसका जो माइनिंग होता है, हम लोगों को प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या मिला? माइनिंग मिला. तो माइनिंग कहाँ पे आएगा? प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव के अंडर में आएगा.
तो जो माइनिंग मिला उसको ही डायरेक्टली हम लोग लाके यूज़ करेंगे या फिर उसको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा. वी नीड सम प्रोसेस ऑफ दैट प्रोडक्ट. Okay, so that's why in secondary industry it refers to the industry where the raw materials or the goods given by the primary industry are processed or need some changes. So it again divided into two types. It may be either manufacturing industry or it may be construction industry. So in this manufacturing industry, what it refers, manufacturing industry refers to those industry where the raw materials are basically converted into finished goods. So it refers to the industry where actual conversion is taking place. जो मतलब goods या फिर जो product available हुआ था primary industry में उसका processing कहाँ पे होगा, manufacturing industry में होगा. So it provide goods to the customers. In manufacturing and with the help of manufacturing industry we get goods. Okay, so manufacturing industry again it of two types. either दो तरह के हो सकते हैं. इट में भी जो गुड्स होता है ऑलरेडी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर में. दैट मे बी कंज्यूमर गुड्स, दैट मे बी प्रोड्यूसर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर. जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली यूज़ कर पाएगा. जैसे कि ये शर्ट, तो शर्ट हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि मोबाइल हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं. ये पेन उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स हो गया. प्रोड्यूसर गुड्स, द गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए जो गुड्स चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है, तो ये वाला डिस्कशन ऑलरेडी पहले हो चुका था. अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगेन डिवाइडेड इनटू four types, that is analytical industry, processing industry, synthetic, and the last one is assembling. So what is analytical industry? Analytical industry, as the name suggests, analytical मतलब यहाँ पे किसको बोला गया है, analyze. So here, so analyze मतलब here in this case a product is, one product is analyzed and many products were received as final product. So in this case one product, for example मान लो जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है वो क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है. हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज़ कर रहे हैं. सो जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट होता है. जब उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट निकल के आता है. क्या क्या हो सकता है प्रोडक्ट, जैसे कि पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो मतलब क्रूड ऑयल से निकलते हैं. ठीक है, सो हियर दिस रेफर्स टू द एनालिटिकल इंडस्ट्री. हियर वन प्रोडक्ट has to make analyze and many products were received due to the analysis. Then the second one is your processing industry. As the name suggests, ये analytical था, so analysis. Processing refers to process. So in this case, one product has to pass through many processes to become a final product. एक प्रोडक्ट को बहुत सारे प्रोसेस में जाना पड़ेगा फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए. सो जैसे मान लो कटन है, तो जो कटन होता है, अभी हम लोग शर्ट यूज़ कर रहे हैं, ड्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो जो पहले होता है वो क्या होता है, कटन का टेक्सटाइल होता है. फिर कटन का जो टेक्सटाइल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं, गिनिंग, वेविंग, डाइंग. तो पहले उसको क्या करते हैं, बुनते हैं, उसके बाद सुखाते हैं, कलर करते हैं, तभी जाके फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास आता है. सो हियर वन प्रोडक्ट हैज टू पासेस थ्रू मेनी प्रोसेसेस in order to become a final product. So the final product of one process is the raw material for another process. अभी मान लो जैसे कि एक स्टेप है, यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला है कि पहले वाला जो स्टेप था ए के बाद क्या आएगा, बी वाला प्रोसेस आएगा. तो ए में जो फिनिश्ड गुड्स है वो बी में क्या हो जाएगा, उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा. बी का जो फिनिश्ड गुड्स है वो सी में क्या हो जाएगा, सी, बी के लिए जो फिनिश्ड गुड्स है वो सी के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा. सो द फिनिश्ड गुड्स ऑफ वन प्रोसेस विल बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ अनदर प्रोसेस. एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कटन इंडस्ट्री एग्जाम्पल हो सकता है.
जो पेपर इंडस्ट्री था वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। उसी तरह जो शुगर इंडस्ट्री जो होता है वो भी आएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। देन नेक्स्ट डिस्कस सिंथेटिक इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन केस ऑफ सिंथेटिक इंडस्ट्री, वेरियस रॉ मटेरियल्स आर गैदर्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस ए फाइनल प्रोडक्ट। किसको लेंगे हम लोग यहाँ पे? वेरियस रॉ मटेरियल, बहुत सारे रॉ मटेरियल लेंगे, उसको यूज करेंगे, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो क्या हो सकता है, यहाँ पे आएगा सीमेंट, पेंट, सोप। तो ये सब होगा क्या? सिंथेटिक इंडस्ट्री। कैसे हो सकता है सिंथेटिक में? अभी जैसे कि मान लो सीमेंट, तो सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड कोल, rock, gypsum, all these things are required to produce cement. So that's why it comes under your synthetic industry. That means various raw material, gypsum एक raw material है, coal एक raw material है, जो आयरन जो रॉक होगा वो रॉक भी एक रॉ मटेरियल होगा। इसको हम लोग गैदर करेंगे, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सीमेंट। उसी तरह ही पेंट हो सकता है, जो मतलब पेंट हम लोग घर में दे रहे हैं। सोप जो साबुन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी सिंथेटिक में आएगा। देन द लास्ट वन इज योर असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन केस ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबल मतलब गैदर करना, ठीक है, मिलाना, जोड़ना। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री वेयर द वेरियस फिनिश्ड गुड्स वेर गैदर्ड टुगेदर और असेंबल्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस ए फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे किस चीज़ का हम लोग मिलावट करेंगे? दैट इज योर फिनिश्ड गुड्स। जितने और अदर जो सेक्टर्स हैं उनमें जो फिनिश्ड गुड्स है वो सारे फिनिश्ड गुड्स को मिला के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो जो कार इंडस्ट्री है, टाटा कंपनी ने एक कार प्रोड्यूस किया है, तो जो कार है वहाँ पे क्या सारे चीज़ टाटा कंपनी के हैं? नहीं है। उसका जो ग्लास होता है, पहले ग्लास जो यूज़ होगा वो ग्लास किसी और ने प्रोड्यूस किया होगा। जो कार में जो बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें यूज़ हो रहे हैं, जो जितने प्लास्टिक है, जितने मतलब सीट का कवर है, ये जो सारी चीज़ कोई और कंपनी ने प्रोड्यूस किया होगा। इसको लाके वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये वाला एग्जांपल हो सकता है असेंबलिंग इंडस्ट्री का। या फिर आप लोग मोबाइल का दे सकते हैं, टेलीविज़न का दे सकते हैं, या फिर साइकिल का दे सकते हैं, मोटर बाइक का दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री किस चीज़ को गैदर किया जा रहा है? फिनिश्ड गुड्स को गैदर किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगेन ऑफ 4 टाइप्स, दैट मे बी एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, एंड द लास्ट वन इज assembling industry. Okay, so construction industry, it refers to those industry which are producing the construction activity or which are dealing with the construction activity, construction of road, bridge, canal, एसेट्रा। जो जितने भी सारे रोड होता है, बिल्डिंग्स होता है, ब्रिज होता है, कैनल होता है, तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का कहाँ, वो वाला जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे आएगा? दैट कम्स अंडर योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इट यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ अदर इंडस्ट्री लाइक सीमेंट, रॉक, और जो मतलब आयरन जो प्रोडक्ट होता है। So construction industry uses the product, raw materials और product given by other industry. Other industry का product को यहाँ पे use होता है। जैसे मान लो सीमेंट यूज़ होता है, उसके अलावा रॉक, आयरन, ये सब चीज़ें यूज़ हो रहे हैं। एंड इन ऑर्डर टू डू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वी नीड सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज। व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज? दैट लाइक in case of construction industry we need engineering skill or architectural skill. We need to develop the engineering skill or we can say the architectural skill in order to be an expert of construction industry. So in secondary industry, manufacturing industry, and the last one is your construction industry. Then the last one which remains, that is your tertiary industry or we can say the service industry. So as the name suggests, tertiary may be a difficult word, but that refers to the
services or service. So this industry is basically related to provide service which are required to smoothen the flow of goods from the producer to the consumer. So this industry, जो टर्शियरी इंडस्ट्री होता है, यहाँ पे क्या होता है, इट स्मूथन द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. प्रोड्यूसर जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ से यहाँ तक जो गुड्स को अवेलेबल करवाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, जो जो सर्विसेज चाहिए, वो सारे सर्विसेज कहाँ पे आएगा, टर्शियरी इंडस्ट्री में आएगा. तो इसका मतलब क्या होता है, अभी मान लो ये शार्ट जो है ये आलेनसोली का शार्ट है, या फिर ये जो पेन है ये बरहमपुर में तो नहीं प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, बाहर कहीं और एक जगह पे प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा शायद, सपोज मान लो मुंबई में प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, तो अगर ये प्रोडक्ट मुंबई में प्रोड्यूस हुआ है लेकिन इसको हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, बरहमपुर में यूज़ कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. दैट मीन्स द सर्विसेज which are required to smoothen the flow of goods from the producer to the consumer. कंज्यूमर कौन हुआ, मैं हुआ कंज्यूमर. प्रोड्यूसर कहाँ पे, मुंबई पे है. तो वहाँ से यहाँ तक गुड्स को लाने के लिए जो जो सर्विसेज चाहिए वो सारे सर्विसेज आपके आएंगे टर्शियरी इंडस्ट्री में. तो क्या क्या सर्विसेज हो सकते हैं, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, पहले गुड्स को आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. और क्या हो सकता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग. वेयरहाउसिंग मतलब गोडाउन. तो ये सारे सर्विसेज है. सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अभी जैसे कि रेलवे, बस, कार, ट्रक जितने भी हैं वो सब ट्रांसपोर्टेशन में आएंगे. वेयरहाउसिंग, जितने भी गोडाउन्स है, गोडाउन चाहिए. बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक. एंड द लास्ट वन इज योर इंश्योरेंस. ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अंडर योर सर्विस इंडस्ट्री. अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होता तो ये प्रोडक्ट मुंबई से बरहमपुर आ पाता, नहीं आ पाता, तो हम लोग नहीं यूज़ कर पाते. लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि उसके बदले में हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं. ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू गेट अंडरस्टूड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडस्ट्री. बेसिकली चलो ब्रीफली एक डिस्कस कर लेते हैं. इंडस्ट्री रेफर्स टू द प्लेस वेयर गुड्स आर converted from the raw material to the finished goods, where the raw materials are converted into finished goods. Again the industry are of two types, primary industry, secondary industry. Three types, primary, secondary, tertiary. Primary industry again two types, genetic and extractive. Genetic means reproduction and multiplication of certain species of animals and plants. Extractive refers to those industry where raising some form of wealth by using the natural resources like water, air, earth, beneath of the surface, etc. So secondary industry again divided two types, that is your manufacturing, construction. Manufacturing means where the actual material, raw material converted into finished goods. Analytical, processing, synthetic, assembling. Analytical मतलब where one process is analyzed and many processes were came out. Then the processing means one product has to passes through many processes in before having the final product. Raw in synthetic we have to assemble or we have to gather various raw materials in order to produce a finished goods. In assembling industry we have to assemble various finished goods in order to produce another finished product. Then construction industry, it require road, bridge, canal, dam, building, etc. It requires it or it uses the product which is given by other industries, and it requires some special skill like engineering skill, architectural skill. In tertiary industry or service, it smoothen the flow of goods from the producer to the consumer like banking, transportation, warehousing, risk, insurance, etc. So dear students, I hope all of you are having a clear idea about the industry. ठीक है, अगर स्टिल आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं. थैंक यू.